अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हफ्सा कयूम और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. वी आर ऑन 100-day challenge and this is day 2. Our today's topic is unlocking the Cambridge tips for the parents. So let's start. As parents, we play a vital role in educational journey of our child. Cambridge system is a gorgeous system, but it also helps your child to develop communication skills, critical thinking, and problem solving. To make easier this journey for you and your child, let me share some of the tips with you. First thing you need to understand is the Cambridge curriculum. It is very important to familiar yourself with the Cambridge curriculum. Only in this way you can guide your child effectively about what is expected in each level of Cambridge. हर क्लास में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, किन बेसिस पे पेपर डिज़ाइन किया जाता है, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पेपर बनाते हैं या कैम्ब्रिज किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर रहा है, इन चीज़ों से फेमिलियर होना is necessary for you to train your child according to the Cambridge curriculum. Cambridge focuses on critical thinking, independent thinking, research work, and application of the knowledge. So by learning the objectives कि वो कैसा पेपर डिज़ाइन करते हैं, आप अपने बच्चों को परफेक्टली गाइड कर सकते हैं. The next step is developing a growth mindset. A growth mindset. Cambridge is not only related to write the correct answers. Cambridge कभी भी सिर्फ right answers को correct answers को write करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया, बल्कि it is a journey of constant improving from the mistakes, learn from the mistakes. अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें. Cambridge always prefer to develop the skills in the child, not only the correct answers. और कैसे हो सकती है constant improvement? Encourage your child. अपने बच्चों को ऐसे मौके दें कि वो अपना mindset grow कर सकें. For example, if your child get 60% marks, don't compare your child with a friend or a cousin कि उसके तो 70% मार्क्स आए थे या उसके तो 90% मार्क्स आए थे. Why you get 60% marks? Don't compare your child. इस तरह से वो एक रेस में चले जाएंगे. उनको लगेगा कि getting the marks is a race और वो भी कंपेयर करेंगे अपने आप को. And that is not good for your child. Education is a journey, not a race. Learning is a journey, not a race. Improvement is a journey, not a race. Right? If your child thinks that getting the marks or the grades is basically the success, तो वो सिर्फ इन डिग्रीज में ही बंद रह जाएंगे. But developing the skills give them also the marks and the grades. आपने वो एक फेमस डायलॉग तो सुना होगा ना कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, कामयाबी तो खुद पीछे आएगी. तो हमें अपने बच्चों के अंदर एक्सीलेंस पैदा करनी है, ग्रोथ माइंडसेट पैदा करना है. थर्ड, कैम्ब्रिज एनकरेजेस सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग. मेक योर चाइल्ड रिस्पॉन्सिबल. उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाएं. इफ़ दे गेट सम टास्क फ्रॉम द स्कूल तो आस्क देम टू रीड इट. उन्हें क्या समझ में आया, उन्हें क्या समझ में नहीं आ रहा, what they think about the character, what they think about the story. If it is a research work, do we have the material at home कि हम उसको perform कर सकें? Have you do the research on it on the Google? Ask them to use the tools कि वहाँ से वो और concepts को लें. Discuss with them कि आपको क्या समझ में आया, मेरा point of view ये. Discuss it with your child. Self-directed learning is very important. If they read a passage or they read a concept or they read the page of a book और उन्हें वो चीज़ समझ में थोड़ी सी समझ में आई है, then discuss कर रहे हैं वो आपसे, तो उनके अंदर ये urge तो होना चाहिए ना कि वो उसको सर्च करें ऑन द गूगल और अदर प्लेटफॉर्म्स, या फिर वो डिस्कस करें आपसे, आप अपने फादर से या किसी और से.
सो उनके अंदर वो भूख होनी चाहिए कि वो उसको ढूंढें, उसको समझें और फिर वो अपनी नॉलेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करें। और इसी तरह से आती है उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर हम उनको बहुत ज़्यादा बर्डनाइज करते हैं, ये क्यों नहीं किया, ये भी मार्क्स नहीं आया, अभी ये राइटिंग, ये वो बहुत सारी चीज़ें, तो दे विल फेड अप और फिर वो उसको छोड़ देंगे। वो उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह नहीं लेंगे, वो उसको एक बर्डन की तरह लेंगे। तो हमें अपने बच्चों को बर्डनाइज नहीं करना। देखिए, स्किल्स आर द थिंग्स कि हम लाइफ में गैजेट्स को यूज़ करके और साइट्स को यूज़ करके विल डेवलप और विल पॉलिश इट, लेकिन करना तो आना चाहिए ना। तो ये प्रैक्टिकल से होगा सब। अभी अंडरस्टैंडिंग इज द प्लेटफॉर्म। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए स्टूडेंट्स को, बच्चों को, और वो इसी तरह से ही आएगी। फोर्थ वन, बी इन्वॉल्व इन योर चाइल्ड्स एजुकेशन, लेकिन नॉट इन द वे कि ये क्यों नहीं किया। वो उनके साथ बॉसी एटीट्यूड नहीं रखना, लर्निंग एटीट्यूड रखना है। एक टॉपिक चूज करें जो चैलेंजिंग हो एंड उनके साथ एक हेल्दी कंपटीशन कर सकते हैं। आप मिल के पढ़ सकते हैं, इकट्ठे उसको रीड आउट कर सकते हैं, सर्च वर्क कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। ये काम आप मिल के भी कर सकते हैं और एक हेल्दी कंपटीशन की सूरत में भी कर सकते हैं। और अपने बच्चों की जब एजुकेशन में इन्वॉल्व होंगे तो वो एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा आपके बच्चे की एजुकेशन। एंड ऑल्सो गिव देम द स्पेस कि क्रिटिकल थिंकिंग करें, वो सोचें, समझें, सब चीज़ों को गैदर करें, पॉइंट्स को लिखें और सॉल्व करें प्रॉब्लम को, उसका सल्यूशन फाइंड आउट करें। नेवर लाइक उनको कभी आपने ट्रे में सर्व करके नहीं दे देना कि ये इसका आंसर है और ये ऐसे और ऐसे ऐसे, अच्छा इसको ऐसे 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 करते हैं। आस्क देम द क्वेश्चंस जो ट्रिगर करें उनकी थिंकिंग को, जो उनके माइंड में क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल को डेवलप करने की कोशिश करें। आस्क देम द क्वेश्चंस, नेवर गिव देम द लेक्चर, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, इसको ऐसे 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 करना है। नो, यू हैव टू डिस्कस विद दैम। अच्छा आपको इसके बारे में क्या पता है, अच्छा फिर अगर ये होता तो कैसे होता, अच्छा चलो आपने उधर सर्च करके देखा है, लेट्स यू डू दिस पार्ट, आई विल डू दिस पार्ट, ऐसे करते हैं, फिर विल डिस्कस द नॉलेज। आप क्या करेंगे कि कुछ क्रिटिकल पार्ट उनको दें एंड कुछ क्रिटिकल पार्ट आप रखें, एंड देन आप जब उसके ऊपर रिसर्च कर लें या आप इंफॉर्मेशन गैदर कर लें, देन डिस्कस। आप अपना वाला पार्ट बताओ, मैं अपना वाला बताती हूँ, आप उसके पार्ट पे क्वेश्चंस करो, वो आपके वाले पार्ट पे क्वेश्चंस करे, एंड इन दिस वे यू विल इन्वॉल्व इन द एजुकेशन ऑफ योर चाइल्ड। लर्निंग स्ट्रेटजीज भी आपकी इसी तरह से आएंगी और आपके बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों डेवलप होंगे। द फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे इज द कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। सेट अप अ प्लेस जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, कोई शोर नहीं हो, अच्छा लाइटेड एरिया हो। हम यहाँ पे बात लाइटेड एरिया और डिस्ट्रैक्शन फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे बच्चे को जब पढ़ने का टाइम मिले तो उसमें एक ड्यूरेशन है, आफ्टर दैट यू हैव टू गिव अ लिटिल ब्रेक ताकि वो थोड़े रिलैक्स हो जाएं। एंड always avoid the cramming before the exams or the test. रिवाइज करने का मतलब है रिवाइज द नॉलेज। डोंट cram the lines or the paragraphs or the answers. Always teach your child that आपने keywords को learn करना है। Like science have some of the terms. इस्लाम में आत और जी और हिस्ट्री हैव सम टाइप ऑफ द टर्म्स। वो टर्म्स अपनी जगह पे रहने चाहिए, दे कैन सेल्फ राइट इट, लेकिन वो टर्म्स को यूज़ करते हुए। क्रैम द होल सेंटेंस और द होल पैराग्राफ और द टॉपिक और द यूनिट और द चैप्टर इज़ नॉट नेसेसरी। ये तो बिल्कुल ख़राब कर देगा हमारी पूरी उस मेहनत को जो हम लोगों ने बिफोर द एग्ज़ाम्स की है टू डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग इन द चाइल्ड। सो इस तरह से हम अपने बच्चों को एक डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट देंगे जिसमें वो उसको पढ़ें, समझें, डिस्कशंस हों, वो सारे वेज जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अप्लाई करेंगे, एंड इट विल हेल्प योर चाइल्ड टू स्टे फोकस्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड एनर्जेटिक।
So don't hesitate to communicate with us if you have any confusion or have any question. Use the comment section and मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं सारे आपके questions के रिप्लाई करूँ और या उनको अपनी वीडियोस में आपके questions के आंसर्स कर सकूँ। ये तमाम टिप्स ना सिर्फ हेल्प करेंगी आपको कैम्ब्रिज करिकुलम को समझने के लिए, बल्कि आपके बच्चा एक्सपीरियंस करेगा एक हेल्दी प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। For more details, you can also join our WhatsApp community जो डिज़ाइन की गई है according to the Cambridge ICGCs और conceptual learning पे। उस community में will help the parents to make the worksheet और guide them how to teach the topics, और किसी भी concept या किसी भी subject के बारे में अगर आपको guideline चाहिए तो will support you there। मैं और मेरी टीम हमेशा will feel happy if you join that। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह डे 3 में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।